Times Now has also accessed details of the mystery that took place inside the Chief Minister's residence. Sources have told Times Now that Swati Maliwal purportedly fell out of favor with the Aam Aadmi Party top brass, which was allegedly miffed with the Rajya Sabha MP because of her absence during the initial period that Arvind Kejriwal was under arrest. She had gone to the United States to visit her ailing sister, but then didn't inform the party. This is as per sources. Furthermore, highly placed sources within the Aam Aadmi Party tell us that Maliwal was sidelined by none other than Sunita Kejriwal, the wife of Arvind Kejriwal. She was not included in any significant election list, allegedly because Sunita Kejriwal didn't want her. Now, sources also are telling Times Now that Swati Maliwal arrived unannounced at Arvind Kejriwal's official residence and she wanted to meet the Chief Minister. Sanjay Singh was asked to come to Delhi from Mumbai to address this press conference that happened yesterday to assuage Swati Maliwal. Times Now's teams are on the ground and we've been tracking every residence of Swati Maliwal. Let's also tell you about how much does Sanjay Singh know and how much is he revealing. A sensational and a blistering allegation has come in from Swati Maliwal's ex-husband Naveen Jaihind, who has claimed that Maliwal is being threatened and there is a threat to her life. He also says there's a deep conspiracy and that he can expose Sanjay Singh's lies, but wants Swati to come out in the open at first, and he wants an FIR to be registered against none other than Arvind Kejriwal. एक महिला सांसद के साथ, सांसद भी छोड़ दीजिए, महिला मान लीजिए या महिला छोड़ दीजिए, सांसद मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इस तरह से घटना होती है और उनको पुलिस को फोन करना होता है तो जान को खतरा तो है ही, क्योंकि अभी तक उनकी कोई बात आई नहीं है, सामने आई नहीं है, या वो कहाँ है, किस पोजीशन में है, किसी को नहीं पता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है तो क्या तो दिल्ली पुलिस क्या संज्ञान नहीं ले सकती? कोई FIR नहीं की, उसने नहीं करवाई, क्यों नहीं करवाई, किस तरह की उसको धमकियां मिल रही है, किस तरह चुप रहने के लिए डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो जब मारपीट हो चुकी है तो ये तो क्लियर हो चुका है। कल जिस तरह से संजय सिंह कह रहा था, तो वो जो एक्टिंग कर रहा था संजय सिंह, तो उसको सब पता है इस बात का कि जो जो चीजें हुई हैं, तो उनकी पूरी तरह जान को खतरा है। और मैं दिल्ली पुलिस से भी और जो भी सिस्टम है, या चाहे वो राष्ट्रीय महिला आयोग है या गृह मंत्री है, कोई भी है, क्या कोई किसी को तो संयंत्र संज्ञान लेना चाहिए? सब के सब चुप है। अरे वो किस ट्रोमा में होगी, इस चीज का किसी को अंदाजा है या नहीं है? तो मेरा मामला ये कोई व्यक्तिगत नहीं है कि कोई व्यक्तिगत मामला है। अगर मेरा व्यक्तिगत मामला होता कि पूर्व पत्नी है इसलिए मामला होता, तो जो हाथ उठा है उसके ऊपर, वो हाथ अभी तक तोड़ दिया जा चुका होता, और जिस जुबान से वो आदेश दिया गया है ना, उस जुबान को भी निकाल चुके होते। हमें व्यक्तिगत मामला नहीं है ये, और जिस दिन व्यक्तिगत हो जाएगा उस दिन फिर हम बता भी देंगे। Meanwhile, after Sanjay Singh's admission, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has spoken out and he says that there should be a suo motu cognizance taken by the Rajya Sabha chairman regarding an assault on a Rajya Sabha MP in the house of a sitting Chief Minister. केजरीवाल ने पहले चीफ सेक्रेटरी का पिटाई किया, वो भी एलिगेशन है। कल सुबह वो राज्यसभा सांसद को भी पिटाई किया। मेरा लगता है कि राज्यसभा का, हमारे जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट है, जो राज्यसभा का चेयरमैन है, उनको सो मोटू कॉग्नाइजेंस लेना चाहिए कि राज्यसभा का सांसद को एक चीफ मिनिस्टर कैसे पीट सकता है। और मेरा अपना निवेदन होगा उपराष्ट्रपति जी को कि आप इसका संज्ञान लीजिए और केजरीवाल का खिलाफ आप अपना प्रोसेस शुरू कीजिए। Now, there's plenty for Delhi Chief Minister to personally answer, especially given that the incident took place at his residence. In fact, Kejriwal had addressed a 15-minute speech just 3 hours later at the Aam Aadmi Party headquarters, but it took more than 30 hours for the party to finally admit the incident and issue a statement via Sanjay Singh. Now, Mallikarjun Kharge and Akhilesh Yadav, two party chiefs from the INDIA bloc, skipped the questions on the assault on Swati Maliwal entirely when they were asked about it in their press conference. Watch what happened. और कांग्रेस पार्टी को आप कहां तक देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को। और सवाल एक सर और है इसमें, अगर आप दे सकें। एक प्रश्न पूछें। जोड़ देता हूं, अलग सा सवाल।
सर, स्वाति मालीवाल को लेकर के दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास पर आरोप लगाए गए हैं, उस पर भी आपका रिएक्शन चाहेंगे। देखिए, आपने जो पहला प्रश्न पूछा उसका जवाब मैं ये देता हूं कि मोदी जी 400 पार पहले से बोलते आ रहे हैं। गनीमत है, हम खुशकिस्मत है वो 600 पार बोले नहीं, क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट की संख्या है 543 है, 543। तो इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, कम से कम वो 600 पार नहीं बोले, ताकि पूरे हिंदुस्तान का गरिमा खत्म हो जाएगा और क्या प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हो। और दूसरी चीज, मैं शर्त लगाता हूं, अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते, 200 पार नहीं कर सकते। और अब शाह बोल रहे हैं, शाह पहले नहीं बोलते थे, लेकिन बड़े बड़े अखबारों में उनके ऐसे आ रहे हैं कि प्रश्न उत्तर, मैं देखा हर पेपर में देखा, हिंदी पेपर में भी देखा, इंग्लिश में देखा, कन्नड़ा में देखा, बड़े बड़े उनके जो प्रश्न और उत्तर क्या पहले ही थे, क्या बनाए हुए थे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो ठीक है, उनका जो कहना है कहते, लेकिन मैं कह रहा हूं। Now let's also listen into what some other INDIA allies have said with regards to the assault on Swati Maliwal. अगर इसमें पॉलिटिक्स है, इस तरह के इश्यूज केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, तो उसकी चॉइस है, लेकिन अगर वाकई कोई चीज़ हुई है तो उसका FIR बनता है और FIR के बाद फैसला होगा कि वो सही है कि गलत है। मुझे लगता है कि केजरीवाल चूँकि वहाँ से बाहर आया हुआ है, वो समझता है कि मौके की नज़ाकत के मुताबिक फैसला करना चाहिए, इसमें ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए, वो बेटर यही है। बिल्कुल सियासत हो रही है, और सियासत अगर नहीं हो रही होती तो उसने FIR करना था। CM office has, and Sanjay Singh has also, the MP from AAP has said that they would take action against the culprit, and I believe that I have full faith in on CM Kejriwal that he would take action against him. Now, Congress Party's Alka Lamba has a message for Swati Maliwal. Alka Lamba, who was once a part of the Aam Aadmi Party, is now asking Swati Maliwal to go ahead and file an FIR in this case. Listen in. आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को स्वीकारा कि मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल, जो आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता हैं, खुद राज्यसभा सांसद भी हैं, उनके साथ वहां पर फिजिकल असॉल्ट हुआ है, अभद्रता हुई है। मैं यही मांग करूंगी बिल्कुल कि इस पे स्वाति मालीवाल को आगे आकर FIR करवानी चाहिए, कानूनी सहारा लेना चाहिए कानून का, और कानूनी कार्रवाई हो ये सुनिश्चित करना चाहिए, और दिल्ली पुलिस को इसमें संज्ञान जरूर लेना चाहिए। BJP leaders are asking one simple question today. They say, why is Arvind Kejriwal silent? And if Swati Maliwal's ex-husband is to be believed, who is threatening Swati Maliwal? Why are other leaders of the Aam Aadmi Party silent? Listen into what the BJP has to say. इंडी अलायंस के पोस्टर बॉय हैं अरविंद केजरीवाल जी। क्या यह हक नहीं बनता आम जनता को जानने का कि उस शीश महल में क्या कुछ हो रहा है? 48 घंटे हो गए हैं, अभी तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। संजय सिंह ने 32 घंटे बाद ये कहा और इस बात की तस्दीक की कि ये हुआ है। अब आप खुद सोचिए, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया है। भाई सुल्तान साहब, ऐसा क्या संज्ञान ले रहे हैं? अभी तक FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? विपक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? वैसे मैं अरविंद केजरीवाल जी पर ना बोलना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि कुछ बोलने के लिए है, और जैसा उन्होंने कोई जिम्मेवारी नहीं निभाई। निकले तो ये एक बहुत बड़े, वो जैसे जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो अमृत भी निकला था और जहर भी निकला था।
तो मुझे लगता है अमृत तो देश में फैला और ये जहर की गांठ दिल्ली में ही रह गई है। मैं समझती हूँ कि जहाँ पर बहन बेटियों की सुरक्षा ना हो, उनकी अस्मिता पर सवाल उठें या उनको सुरक्षित रखने के लिए प्रॉपर मेजर्स ना हो और जिम्मेवार लोग उसके ऊपर कोई भी चिंता प्रकट ना करें, उस पर कोई कार्रवाई को अंजाम ना दें, तो बहुत निंदनीय है। मानिए कि अगर एक मुख्यमंत्री के सामने ऐसी घटना हो रही है या उनके शय पर ऐसी घटना हो रही है, तो आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कितना बड़ा खतरा है महिलाओं के लिए दिल्ली में, आज इसी से स्पष्ट होता है। जो व्यक्ति इतना बोलती हैं प्रखर होकर, अलग अलग विषयों पर अपने विषय पर चुप हो गई, तो उन पर निश्चित कोई दबाव है, जान पर शायद खतरा भी हो सकता है, पता नहीं मुझे। और ऐसी आशंका उन्हीं के करीबी आजकल प्रकट कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ना तो केजरीवाल जी खुद कार्रवाई करवा रहे हैं और शायद केजरीवाल जी की टीम ऐसा दबाव डलवा रही है कि खुद स्वाति मालीवाल जी कुछ बोल नहीं पा रही है। आज आम आदमी पार्टी, एएपी आम आदमी पार्टी नहीं, एंटी विमेन एनार्किस्ट पार्टी बन चुकी। अभी तक आम आदमी पार्टी ने केवल निंदा करी है, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी यदि अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता, अपनी ही पार्टी की एक महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते अपने ही आवास पे, तो वो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे? Time for us to slip into a short commercial break at this point of time, but stay with Times Now as we'll get you more investigative leads when it comes to the Swati Maliwal controversy. Stay with Times Now. Kane sir, your dinner. On a tile? But it's antibacterial. Easy to clean. But plates? Kane bhai, it's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।